हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक नया चैप्टर लेके हैं। तो जैसे हमने बात की हुई है, वी आर डिस्कसिंग ऑन सार्क मीन्स द 8 members which function together, which sign so many summits during 85. We will discuss them, their relation, how they can improve their relation, what are the things, what are the factors which hamper their relations. We have to discuss all those. Today we will discuss the relation of Indo-Pak, means what are the obstacle in their relations and how they like to build their relation, how they like to improve their relations. We will discuss them one by one. First of all, the background, how the nation got independence. We all are well aware of the fact that India got independence on 15th of August 1947, and at the same time partition takes place, and as a result of that there was the existence of a Pakistan. Then the existence of Pakistan is as a result of the divided rule of British ruler. So there were so many things, so many factors on the basis of which there is the relations sometime go up and downs, means वो relation जो हैं उनके between Pakistan and India sometime इतने पहुँच जाते हैं कि they come nearer to the war, and sometime the relations are so that they like in a friendship manner, means it seems that both the countries are like two friends. जैसे हमने इसको बहुत पहले से डिस्कस किया हुआ है कि जो द कश्मीर इशू, which is one of the cause between the two countries, because it is a Kashmir on the basis of which both the countries are not in a position to build their relations good. Means this was the Kashmir. हम लिखेंगे relation between Indo-Pak. How they can improve, how they can improve the relation. आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे। पहले तो हम बैकग्राउंड इसका देख रहे हैं कि द कश्मीर जिस पे जो है वो आज तक 2 वार हो गए हैं, एंड प्रॉक्सी वार इज कंटिन्यूअसली देयर, मीन्स प्रॉक्सी वार तो चल रहा है इनके बट वार भी लड़े गए हैं, जंग। जैसे द फर्स्ट वार took place during 1948, means from the beginning, from the existence of the two countries. जैसे इंडिया का ये था independence in existence of Pakistan during 15th of August 1947, तब से ही जो है वो conflict है on the issue of Kashmir. तो 2 जंगें लड़ी गई, one fought in 1948, next 1965. तो फिर the next war, the next fight between India and Pakistan was during 71, when there was but the issue at that time was Bangladesh. The issue was not Kashmir. At that time the issue on which there was a fight between the two countries. The two countries fought on the issue of
creation of Bangladesh, and India was the first country to accept the Bangladesh as a republic, as a Bangladesh as a separate country. Means these were the two parts of the Pakistan. जैसे ईस्ट एंड वेस्ट था, और पहले से ही ऐसा चल रहा था कि पाकिस्तान और जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के जो दो हिस्से थे, दे पाकिस्तान जो है वो इस बांग्लादेश को जो है वो उसको ट्रीट नहीं करते थे अच्छी तरीके से. व्हाट दे रिक्वायर, व्हाट दे नीड मीन्स वो कहीं न कहीं उनसे अलग तरीके से सलूक किया करते थे. और जो है जब ये जंग हुई, जब क्रिएशन हुआ, तो एट दैट टाइम जो है वो अमेरिका जो था वो अमेरिका इंडिया को वो कर रहा था मदद, और रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था. और जंग चलती गई, और स्टिल टिल डेट जो है ये जो प्रॉक्सी वार चल रहा है, छोटी लड़ाई अपनी 99 में हुई एक लड़ाई, और प्रॉक्सी वार तो चल ही रहा है, और ये जो है छोटी जंगें चल रही हैं, लेकिन प्रॉक्सी वार कंटिन्यूअस है. ये क्यों है? क्योंकि द मेजर इशू इज ए कश्मीर. तो अब हम देख लेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा अगर ये जो पीस लाना है, इफ बिकॉज द टू कंट्रीज, दिस इंडिया एंड पाकिस्तान आर द टू बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द एशियन. जैसे हम सार्क की बात करें तो सार्क में जो 8 कंट्रीज हैं, इनमें इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो दो बड़ी कंट्रीज हैं. मीन्स दे आर डेवलपिंग कंट्री. इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री एंड पाकिस्तान इज आल्सो डेवलपिंग. जहाँ तक टेक्नोलॉजी वगैरह 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 दूसरी चीज़ों की हम बात करें तो इंडिया इज वेल इन एडवांस देन दैट ऑफ पाकिस्तान. सो इफ जो जितना वो आपस में पीस बनाएं, आपस में रिलेशंस को अच्छी तरह से बिल्ड करें, मीन्स दे विल डेवलप. वो कहीं न कहीं वो हमारे जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, दे विल कम्पीट विद दो. बट व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द फॉल्ट, कि क्या है कि हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस में रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हैं. जैसे हमारा ये पाकिस्तान है, ये शिमला एग्रीमेंट का भी उल्लंघन करता है. जैसे हमने कल उसको डिस्कस किया कि शिमला एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो रिजॉल्व किया था, उन्होंने प्लेज लिया था कि नो कंट्री विल यूज द आर्मी और एनी अदर केमिकल वेपन अगेंस्ट ईच अदर. मीन्स कहीं वो एक दूसरे के साथ किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं प्रॉक्सी वार नहीं करेंगे, कहीं इंटेग्रिटी जो है, सॉवरेंटी है, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, जो बाउंड्रीज हैं उन पे छेड़खानी नहीं करेगा. बट इट सीम्स दैट द पाकिस्तान मोस्टली is not obeying those resolutions which are passed in शिमला एग्रीमेंट. तो डिस्पाइट ऑफ दैट, जैसे हम देख लेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो, जैसे कि इनका कश्मीर इशू है, इन्फिल्ट्रेशन है, जैसे टेररिस्ट का भेजना पाकिस्तान से, और यहाँ पर वो जो है वो दहशत फैलानी इंडिया में, ये अभी रुका नहीं है. दिस वी कैन कॉल एज ए प्रॉक्सी वार. इट मीन्स प्रॉक्सी वार इज देयर बिटवीन द टू कंट्रीज. लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारा तो है ऐसे, अगर हम देखेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हो सकती हैं जिनमें से अगर वो करें तो ये जो दो बड़ी कंट्रीज़ हैं हमारे एशिया के, साउथ एशिया का जो सार्क है, या हम एशिया की बोल दें कि ये दो बड़ी ताकतें हैं, 2 कंट्रीज़ हैं, तो ये कहीं न कहीं आपस में इनका
फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है, इनका एक माहौल बनेगा, पीस बनेगा, और जितना जो है एक्सपेंडिचर है, जितना दूसरी चीज़ें इनको इन कन्फ्लिक्ट्स में जो जैसे मिलिटेंसी को रोकने के लिए या इसके वेपन्स वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं फलाई अच्छाई के लिए यूज़ किया जाएगा, और वो पैसा जो है और किसी में यूज़ किया जाएगा। तो इससे फ्रेंडशिप बनेगा, टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, और जो प्रॉक्सी वार है उसको भी कुछ मिनिमाइज, नॉर्मलाइज करने में मदद हो सकती है। तो लेट अस डिस्कस, हम देख लेंगे कि कौन कौन से कारण हैं। ऐसा भी है, अनलेस एंड अनटिल बोथ द कंट्रीज would not like to bring normalcy, it is not possible। अगर एक कंट्री जाएगी ये लेके कि हम पीस को बढ़ाएंगे, हम फ्रेंडशिप या कोऑपरेशन या किसी चीज़ में हम इसको इकट्ठा ही लेके चलेंगे, लेकिन तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि दोनों कंट्रीज जो हैं इसकी तरफ स्टेप, इसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं। तो आज हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड, हालांकि बहुत सारी टेंशन से, हालांकि हमारा जो है वो JNK में मिलिटेंसी चल रही है बड़ी, दूसरी पंजाब में चली, तो ये सारा जो था वो इट वाज एज द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सी वार ऑफ पाकिस्तान, या जो चला रहा है वो तो मिलिटेंसी इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, और ये जो दहशतगर्दी फैला रहा है, इट इज़, ये तो उसका है। अनलेस एंड अनटिल इट विल नॉट स्टॉप दैट, पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेशन को, मिलिटेंसी को सेपरेट करना बंद नहीं करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट देयर इज ए पीस बिटवीन द टू कंट्रीज, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है तब तक। लेकिन जब तक दोनों कंट्रीज जो हैं इसके लिए स्टेप आगे नहीं बढ़े तो तब तक मुमकिन नहीं होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसके बेसिस क्या होंगे, इसके कारण क्या हो सकते हैं कि अगर सपोज बोथ द कंट्रीज वुड लाइक टू बिल्ड गुड रिलेशन, टू बिल्ड ए फ्रेंडशिप, to build a cooperation, means what are the steps, what are the basis, on the basis of that the relations are able to build, the good relations are built। क्या हम देख लेंगे कि पॉलिटिकल बेसिस है, नंबर 1 आ गया पॉलिटिकल बेसिस, पॉलिटिकल बेसिस। तो जब तक हमारा सियासत, उनकी हुक्मरानी, जो political relation between the two countries can be normalized between the two countries if there is a stable political system, means अगर stable political system है दोनों countries में, अगर दोनों countries चाहें, if both the political system of both the country is stable on the issue what they are going to do, means वो करना क्या जा रहे हैं, अगर दोनों स्टेबल हैं, मीन्स स्टेबल मीन्स कि अगर दोनों चाहते हैं, इफ दे वुड लाइक, तो तभी ऐसा मुमकिन होगा। अदरवाइज एक तो स्टेबल है, दूसरा उसको अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स हम अनस्टेबल और स्टेबल मीन्स मुतमईन, अगर वो चाहता है मीन्स ही लाइक, अनस्टेबल मीन्स इफ ही डज नॉट लाइक। एक जो है वो चाह रही है, एक का वो जो हुकूमत है वो चाह रही है, और दूसरी हुकूमत जो चाह नहीं रही है। अगर फिर जो है ऐसा सिस्टम नहीं है, फिर मुमकिन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल both the political system of both the countries is not stable, unless and until these are not stable, the peace cannot be built, good relations cannot build। तो हम देखते हैं कि अगर स्टेबल होता तो फिर जो वार जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान हुआ और कश्मीर इशू पे जो है कंट्रीज जो हैं वो ब्रिटिशर से आज़ादी 1947 में ली और 1948 में जंग हो जाती है ऑन कश्मीर इशू। तो मीन्स देयर इज नॉट स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज। अगर ऐसा होता मीन्स वो जो हुआ
इसका शिमला एग्रीमेंट हुआ था, दूसरा हुआ था, तो उसका वो जो है उल्लंघन उसका उसके अकॉर्डिंगली वो काम नहीं करते। तो इसका मतलब है कि पीस तब तक नहीं आएगा जब तक ना बोथ कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट मस्ट बी स्टेबल। इफ दैट इज स्टेबल, इफ दैट the political system is willing to bring the change, then it is possible that the close relations, the relations can be improved। जो relations है वो एक दूसरे के close आ सकते हैं। if they like वहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सकते हैं, वो तभी तो मुमकिन है। जैसे बस सर्विसेज का जाना, रेल का जाना, एयर का जाना, थोड़ा सा आना जाने में जो है फ्रीली जब आएंगे, जो बाउंड्रीज जो है जैसे कि हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो है वो बाउंड्रीज जो हैं, इसका वो जो सीज फायर है उसकी वजह से लोग अलग हुए हैं। अदरवाइज इनका कल्चर सेम है, इनकी ज़बान एक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट जो है जिनमें हम मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा थोड़ा सा ये जो बाउंड्रीज ने एक दूसरे के दो पार्ट कर दिए, अदरवाइज ये जो है वो एक ही पार्ट है। तो हम नेक्स्ट जो हो गया फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हमने पहले बात की कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज इज स्टेबल, अगर वो स्टेबल है तभी जाके रिलेशंस को बिल्ड किया जाएगा, अच्छा तभी रिलेशंस को इंप्रूव किया जाएगा। इसके लिए आना जाना होगा, ट्रेड का शुरू करना होगा, आदमियों को थोड़ा लीनियंसी देनी होगी एक, ताकि वो एक दूसरे के मुल्क में आ जा सके, कल्चर मिक्स होगा, इस तरीके से फ्रेंडशिप बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दैट इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, द प्रेजेंट एज विच इज ए एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, there is a race in this regard between among the different countries of the world. Different nations are competing with each other on the basis of technology. Which one is more advanced in technology? There is a race between the different countries in the world. Means हर एक जो है वो एक दूसरे से बर्तरी लेना चाहता है। जहाँ तक साइंस, चूँकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टुडे द होल वर्ल्ड इज ए ग्लोबल यूनिट। आज हम बोल सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो है इट इज़ ए ग्लोबल यूनिट, बिकॉज वी आर एट होम एंड वी आर वाचिंग टेलीविजन। व्हाट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन वॉच फ्रॉम ए होम। हम अपने घर में बैठे हुए हैं और वी आर वाचिंग टीवी, और दुनिया में क्या हो रहा है, what is going on, either that is bad or good, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, throughout the world we are watching. It means this is global unit, हम कह सकते हैं global unit, इसलिए it is just like a unit. It means whatever is going in the world, either that is bad or good, we are watching. We are well aware of the effect. Means उसी असना में, उसी समय कुछ हैपनिंग होती है तो द इंटायर वर्ल्ड नो दैट कि अगर कहीं एक हिस्से में हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देयर इज ए टेक्नोलॉजी, देयर आर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस विच कैन हेल्प अस टू नो ऑल अबाउट दैट। तो द इंडिया, अगर हम इफ वी कैन टॉक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इंडिया इज एडवांस इन दिस टेक्नोलॉजी। As far as the technology is concerned, India is advanced. India is better than that of Pakistan. Pakistan is lagging behind in this field. अगर हम दो कंट्रीज को जो है वो कंपेयर करें, इनका कंपेरिजन करें, चूँकि डेवलपमेंट इज ए सिस्टम विच कैन नॉट बी मेजर्ड, देयर इज नॉट एनी यूनिट। जैसे हम किसी चीज़ को तोलते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, तो ऐसा इस डेवलपमेंट में विच वन इज डेवलपमेंट विच इज
more developed, which is underdeveloped and which is developing. There is no unit. अगर कोई नहीं है, जैसे हम तोलना किसी चीज को नापते हैं, तोलते हैं, कितना बड़ा है कितना, ऐसा नहीं है. बट दिस डेवलपमेंट इज ओनली कंपेयर्ड, दिस कैन बी कंपेयर्ड, विच इज, हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, कौन सा आगे है. तो सपोज इफ वी विल लाइक टू कंपेयर द टू कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी विल से, वी नो दैट इंडिया इज मोर एडवांस्ड देन पाकिस्तान. एंड इफ there is a friendship, if both the countries would like to bring peace, if they like to build friendship between the two countries, and when there is a good relation, when there is a friendship between the two countries, it means India will help to Pakistan with regard to science and technology. He will help in developing in this field. साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, साइंस बेसिस जो हैं, इसमें कहीं न कहीं अगर उनके ताल्लुकात अच्छे हों, इफ दे वुड लाइक टू बिल्ड दे वुड लाइक टू इम्प्रूव दियर रिलेशंस, दिस इज द बेसिस, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन. What is the technology in Pakistan and what is technology in India? If they will cooperate, they will help each other, means naturally the relations will improve, they will build a good relation as a result of cooperating. वो एक दूसरे को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे. अगर ऐसा मुमकिन है ये कि वो इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं. कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जो है, मींस ये बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनमें जो है इंडिया वेल एडवांस है. वो कहीं न कहीं पाकिस्तान को हेल्प करें, मींस कहीं अगर हेल्प लेने की भी ज़रूरत होगी तो मींस दिस इज़ द बेसिस विच कैन नेचुरली, जो रियली और नेचुरली हेल्प करेंगे एक दूसरे को, जो रिलेशन है उनको बिल्ड करने में, और वो फ्रेंडशिप जो है वो बना सकते हैं अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करें, अगर हेल्प करें टेक्नोलॉजी को लेके. देन नेक्स्ट स्टेप जो है कल्चरल एंड एकेडमिक बेसिस. कल्चरल एंड एकेडमिक बेसिस, एकेडमिक बेसिस. तो नेक्स्ट स्टेप जो है कल्चर. कल्चर जो है इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर द टू नेबरिंग कंट्रीज, दो हमसाया ममालिक हैं. दे हैव सो मेनी कॉमन थिंग्स. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बिकॉज द टू कंट्रीज वर बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज वन कंट्री. इंडिया था और ये दोनों एक ही थे. तो इट मीन्स नेचुरली व्हेन ये एक घर था, एक मुल्क था, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी कॉमन थी, बहुत सारे इनका कल्चर जो था, कल्चरल एक्टिविटीज़ इनकी एक जैसी थी, इनकी ज़बानें एक जैसी थी, इनका रहन सहन एक जैसी, स्टिल दैट इज एग्जिस्टिंग, मीन्स कल्चर जो है वो सेम है. हम पंजाब, यहाँ पंजाब की, वहाँ पंजाब की, इस कश्मीर की, उस कश्मीर की, मीन्स बहुत सारे वो जो है थिंग्स दे आर इन ए कॉमन. तो जैसे हमारे वो जो है बहुत सारे हमारे वर्शिप जो है कॉमन हैं. तो मीन्स कहीं न कहीं अगर हम इसको लेके चले, अगर इंडिया और ये जो पाकिस्तान जो है अपने कल्चर को शेयर करें, अपने कल्चर को एक दूसरे के कल्चर से मिलाएं, वो ऐसे प्रोविजन रखें कि वो कल्चर को शेयर करेंगे बोथ द कंट्री. और अगर जब ऐसा किया तो रियली जो है उनके रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होंगे, वो प्रमोट होंगे एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ कल्चर ऑफ द टू कंट्रीज.
ये तो कल्चर इनका एक था। दीज आर द बाउंड्रीज। जब इनका पार्टीशन हुआ, सिंपली द सीज फायर, जो इनकी बाउंड्री जो बनाई, उन्होंने इन लोगों को दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया, अदरवाइज वो एक ही थे। और ये इट इज सिंपली ए सीज फायर लाइन जो है, उसने उनको अलग कर दिया। तो उससे क्या होगा कि इन्होंने लोगों को दो हिस्सों में तकसीम किया। जो है उसने जो बाउंड्रीज जो है, उसने कल्चर को दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया। कल्चर सपोज वो बाउंड्रीज के साथ में जो हमारी एरिया है, उनका कल्चर सेम है, उनका कल्चर एक है। सिर्फ अगर वो चेंज है तो लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया, अदरवाइज द कल्चर इज सेम। इफ दे विल प्रमोट, इफ दे विल शेयर व्हाट इज in the Indian culture, if they will share the same to the Pakistani, and Pakistani culture share करेगा, इधर शेयर करेंगे ऐसे प्रोविजंस हो कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के मुल्कों में जाके अलो रखें। उस टाइम बिल्कुल खोल दे बॉर्डर्स को, आना जाना हो तो रियली दिस विल इम्प्रूव द रिलेशंस कैन बी बिल्ड। आर्ट है, आर्ट जो भी है, आर्ट लोगों का है। पाकिस्तानी आर्ट क्या है, यहाँ का आर्ट क्या है। आर्ट को लेके हम चलेंगे कि जैसे वो फैरन और कांगड़ी बनाने में मशहूर है, उनका आर्ट है कि वो दे यूज करते। सपोज दैट इज शेयर टू अदर, तो मीन्स वहाँ से उससे आर्ट हो गया। किसी का आर्ट है क्या है, उसको अगर करें, म्यूजिक है, म्यूजिक को लेके आप चले बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है, उनमें जाके सिंगर्स यहाँ पे लाए जाते हैं, यहाँ के सिंगर्स वहाँ जाते हैं, यहाँ का फिल्मी वो जो हीरो है वो पाकिस्तान में जाके जाए, पाकिस्तानी यहाँ के आए। तो मीन्स दिस इज द कल्चर। आर्ट और म्यूजिक जो है, अगर इसको शेयर किया जाए, अगर ऐसा प्रोविजन हो, अगर ऐसा दोनों मुमालिक जो है वो दे विल ट्राई टू बिल्ड द गुड रिलेशंस, these are the basis for building or improving the relation between the two countries. Then there is a sport or games. Next आ गया sports and games are also the basis. तो जहाँ तक तरह तरह की खेलें, गेम्स एंड स्पोर्ट, जहाँ तरह तरह की खेलों का ताल्लुक है, वो जो these games are played on the friendship basis, team spirit है, cooperation है, and once there is a game between the two countries that is played without the interference of a political system. जहाँ तक गेम का सवाल है, तो जब भी कोई गेम खेली जाती है तो उस गेम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। इट मीन्स जो खेल खेला जाता है वो बगैर किसी उसके होता है। इट इज प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। इसमें स्पोर्ट्समैनशिप लगता है गेम को खेलने में। तो इट मीन्स इसका कहीं किसी का हाथ नहीं होता है। वो जो टीम स्पिरिट खेला जाता है, टीम स्पिरिट इससे बात पैदा होता है। अगर तरह तरह की खेलें जो हैं वो खेली जाए, इफ़ द टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, इफ़ द मैचेस will held between the two countries, India and Pakistan, this will naturally bring the two countries nearer, and friendship will build, team spirit will build, or by this process the relations can be improved between the two countries. तो इस सिलसिले में जो है लोगों का मिलन होगा, आपस में करीब हो जाएंगे, तो नेचुरली इससे बिल्ड हो सकता है कि अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बेस बनाया जाए और दो कंट्रीज जिनके दरमियान में टेंशन है, तो वो जो है कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन बिल्ड हो सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग्स विच कैन हेल्प in building the good relation between the two countries. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ये पॉलिटिकल बेसिस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कल्चरल एंड एकेडमिक बेसिस है, स्पोर्ट्स एंड गेम है। मींस ये अगर इनको आपस की कंट्रीज, वो जो दोनों कंट्रीज के बीच में इनका इनकाद हो, ऑर्गेनाइज करें, एक दूसरे में खुला जाए, तो
वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि रिलेशंस को बिल्ड करने में रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों कंट्रीज का विलिंगनेस जरूरी है. बोथ द कंट्रीज आर विलिंग एंड मोटिवेटेड टू बिल्ड द गुड रिलेशंस, इट इज पॉसिबल ओनली. अदरवाइज ये अगर एक नजदीक जाए तो दूसरा भागे तो ऐसे काम नहीं हो सकता. तो मुझे लगता है कि दिस इज एनफ फॉर टुडे. हम नेक्स्ट में जो है दूसरा वीडियो लेके आपको और जो है अभी सार्क की बात हम करते हैं, तो अभी और जो सारी कंट्रीज के रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे. तो बाकी